گاڈ بلیس یو. جو پیچھے میری بہنیں کھڑی ہیں وہ بھی آگے آ جائیں, جگہ ہے, تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیں, کوئی بات نہیں, ہم یسوع کے قدموں میں بیٹھیں, زیادہ سکون ملے گا. ہاللیلویا. یہ بھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں بچے بھی. یسوع کی حضوری وچ اونچی ساری بولیں, کیا ہوتا ہے یسوع کی حضوری میں؟ بدھ کو میں نے میسج سنایا تھا یسوع کی حضوری کے بارے میں. کس کس نے برکت پائی تھی؟ کافی لوگ ہیں جو بدھ والے بھی ہیں یہاں پہ. بدھ والے لگ گئے, سنڈے والے لگ گئے, شام والے لگ گئے, صبح والے لگ گئے. تو میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ہر روز 5 سے 6 بجے اس چرچ میں دعائیہ میٹنگ زور پکڑ رہی ہے اور بہت سے لوگ برکت پا رہے ہیں. اور پھر صبح 3 سے 4 بجے ہر روز واٹس ایپ پہ ایک دعائیہ میٹنگ ہماری ہوتی ہے. اگر آپ میں کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو آپ پلیز رابطہ کر سکتے ہیں. ہم ایک گیت زبور گاتے ہیں, دعا ہوتی ہے, پھر میں چھوٹا سا میسج دیتا ہوں اور دن کا آغاز ہم خدا کے نام سے کرتے ہیں اور سارا دن خدا کے فضل سے ہمارا بڑا فریش بھی رہتا ہے. تو اگر اس میں کوئی شامل ہونا چاہتا ہے, آپ گھروں میں بیٹھے ہوں گے, آپ کو کال جائے گی, اس کال کو آپ نے ریسیو کرنا ہے, اپنا مائک کا بٹن میوٹ کرنا ہے, سننا ہے, جب آپ کا نام لے کے آپ کو دعا یا گیت کا موقع دیا جائے گا تب آپ نے مائک آن کرنا ہے. تو 1 گھنٹہ ہم اس میں ضرور رہتے ہیں اور میں ایمان رکھتا ہوں ہم برکت پا رہے ہیں. ہاللیلویا. تو یہ ساری جتنی ایکٹیویٹیز چرچ میں چل رہی ہیں, ان ساری ایکٹیویٹیز کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خدا کے لیے زوردار تالیاں کرتے ہیں. آج کا ٹاپک ہے جیسا تم دوسروں کے ساتھ کرتے ہو ویسا ہی لوگ تمہارے ساتھ کریں. دعا بھی کرتے ہیں نا, جس طرح سے ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں اسی طرح تم ہمارے بھی. تو کیا چاہتے ہیں کہ کون چاہتا ہے میرے ساتھ بہت برا ہو؟ کوئی نہیں چاہتا, کوئی نہیں. سچی بات ہے, پوچھے ذرا ساتھ برا تو نہیں ہونا چاہتے, نہیں کہہ رہے نہیں. تو پھر ہم کسی بھی برا کیوں چاہتے ہیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کے لیے برا کریں تو آپ کے لیے برا نہ ہو. یہ کنفرم بات ہے, یہ کلام کی بات ہے. وہی اپنے قدموں پر کھڑے ہوں. اور آج ہم اگلے اتوار عید پینتیکوست ہے, جیسے ایلڈر صاحب نے بتایا, اگلے اتوار ہمیں عید کی طرح ہے. عید کرسمس میں ہم کیسے آتے ہیں؟ تیار ہو کے بھائی گاتے ہوتے ہیں ربنا والے. تو اسی طرح ہم نے اچھی طرح تیار ہو کے آنا ہے, کیونکہ یہ عید کوئی چھوٹی عید نہیں ہے. اس میں یہ سب سے بڑی عید ہے جس میں روح القدس ہماری زندگیوں کے لیے ہمارے پاس آیا. ہاللیلویا. آج کی ہم تلاوت کریں گے مرکز کی انجیل, اس کا 4 باب اور اس کی 24 آیت. سب میرے پیچھے پیچھے بلند آواز سے بولیے گا. پھر اس نے ان سے کہا خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو, جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا اور تم کو زیادہ دیا جائے گا. خدا کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جناب ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو. سب لوگ تشریف رکھیں. اب یہاں پہ دیکھیں, پھر اس نے کہا کہ خبردار ہو. نالدن کو خبردار ہو, ذرا اچھی طرح لا کے کہ خبردار ہو کہ کیا سنتے ہو. کیا؟ کہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے. پرانے دور سے بڑی اچھی گل ہوتی تھی نا, اکثر آج کل تو نہیں, اکثر کہتے نال دیا کو, نال دی باجی کو جائیں آٹا لے کے آئیں کولی چ, تے وہ پھر باجی کی کرتی سی, کولی آٹا دیندی سی, تے باجی دین والی باجی کو دے کہندی سی اے ویلا میں تینوں ناپ کے دین دے یا کولا اتوں تک پا کے, تے جدوں میں لینا ہی نا اودا بھی دب کے اتوں تک لینا ہے. ہوتا تھا ایسے کہ نہیں کوئی بھی چیز. تو یہاں پہ اس سے زیادہ بات کی گئی ہے. اس نے کہتا ہے جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا اور پھر کیا کیا جائے گا, اس سے زیادہ تم کو دیا جائے گا. یعنی ہم تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں دب دب کے دے رہی ہیں, انہیں ہی واپس ملا. خدا کہہ رہا نہیں, اس تو زیادہ تو واپس ملے گا. یعنی اگر کسی کے لیے برائی کریں گے تو اگر آپ نے 75 پیسے کی برائی کی ہے آپ کو 100 روپے کی برائی واپس ملے گی. اگر آپ نے کسی کے لیے 1 روپے کی نیکی کی ہے آپ کو 5 روپے کی نیکی واپس ملے گی. یعنی یہ سوچنا ہے, 7 سال سے نہیں, یہ سوچنا ہے. اور یہ جو بات ہے نا, یہ آیت کا روحانی پہلو ہے کہ یہ یسوع مسیح کے ان گہرے اور انقلابی فرمودات میں سے ایک ہے جو بظاہر بہت سادہ لگتے ہیں, بہت سادہ لگتے ہیں. یہ بات چھوٹی سی لگ رہی ہے نا, کیا جس پہ مانس تم ناپتے اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا, لیکن اس کی روحانی گہرائی جو ہے لا
इतना ही है। इसमें वो अपने शागिर्दों के एक बहुत बड़े रूहानी तंबीह और वादा देते हैं यीशु। वो कहते हैं कि गौर करो, ये भी नहीं कहा कि सुन लो गल, नहीं, यहाँ पे कहा है खबरदार। क्या कहा है? खबरदार उस वक्त कहा जाता है जब कोई बहुत ही अहम चीज हो, जहाँ पे 11,000 वोल्ट बिजली जा रही होती है, वहां नीचे खोपड़ी बनी होती है और लिखा होता है खबरदार, यानी यहाँ पे होशियार रहो, गौर करो कि क्या सुनते हो। आज हम अक्सर दूसरों की बातें सुनते हैं, कोशिश करते हैं। आज हम इस आयत के 3 पहलुओं पर गौर करेंगे, ये हमारे ईमान और रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू होती है। और गौर करो कि क्या सुनते हो। अक्सर हम सुने बगैर ही रिएक्ट कर जाते हैं। यीशु ने सिर्फ ये नहीं कहा कि सुनो, बल्कि उन्हें कहा कि गौर करो। क्या कहा? गौर करो। दुनिया का शोर बामुकाबला खुदा की आवाज। एक तरफ खुदा की आवाज इस दुनिया में है, लेकिन एक तरफ दुनिया की आवाजें भी बहुत सी। लेकिन खुदा कह रहा है कि गौर करो। अगर दुनिया की आवाज भी करनी है तो उस पर भी क्या करना है? सब बोले क्या करना है? जिस नाप से तुम नापते हो। दूसरी बात, पहली बात है गौर करके बात सुननी है, और दूसरी बात यह कि गौर करने के बाद हमें नाप, जिस नाप से, जिस मेजरमेंट से, जिस फीते से, भाई क्या गा रहे थे, जिस फीते से, ਜਿਹੜੇ ਫੀਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਨਾਪਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਫੀਤੇ ਨਾਲ ਮਿਣੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੇਖ ਨਵੀਂ। यहाँ पे नापने से मुराद आपका बर्तन है। जैसे मैंने बताया ना कौली, कि अगर आप एक चम्मच से किसी की बुराई करेंगे ना, तो बुराई समंदर की सूरत में आपके सामने आएगी, और किसी के सामने अगर चम्मच से नेकी करेंगे तो नेकी भी समंदर की सूरत में वापस आएगी। यानी इतना फर्क है। कलाम के लिए तड़प, तीसरी बार, खुदा के पास बरकतें, हिकमत और काशवा की कोई कमी नहीं है। अब अगर छोटा नाप है हमारे पास तो हमें बड़ा नहीं मिल सकता, और बड़े नाप से हमें कैसे देखा कि स्वानी हो शलवार के नाप दे दे कच्छे का। अगर हम कच्छे का नाप देंगे तो क्या सिल्क आएगी, पैंट आएगी कि कच्चा आएगा? तो कच्चा आएगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा साहब है, किसी के लिए कच्चे जितनी बुराई करेंगे तो पैंट जितनी वापस आएगी, यानी पूरे सूट जितनी बुराई वापस आएगी। और खूबसूरत जिंदगी गुजारने का यह सूट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाए, कौन कौन चाहता है मेरी जिंदगी खूबसूरत हो जाए? सब चाहते हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं चाहता, सब चाहते हैं। तो फिर उसका सूल है कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, ये आपकी परेशानी नहीं है। 7 साल से कहें, लोग आपके बारे में, ऊंची सारी बोल, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, ये आपकी परेशानी नहीं है। खुदा ने लोगों ने मुंह दिता, उन्होंने बोलना ही। पंजाबी की कहावत है, जिन्ने मुंह होनिया। तो लोग आपके बारे में आज क्या बोल रहे हैं, ये आपकी टेंशन नहीं है, आपकी परेशानी नहीं है। आपकी परेशानी पता क्या है? जानना चाहते क्या है? कि आप उनकी बातों पर ध्यान देते हैं, ये आपकी परेशानी। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, ये आपकी टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपकी टेंशन क्या है कि लोगों की बातों पर आप ध्यान ले देते हैं, ये आपके लिए तकलीफ बाइस बनती है। वैसे बोलते रहेंगे ना, इधर से सुने इधर निकाल दें। अच्छा, हमें ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने हमारे लिए बोला भी कि नहीं, किसी ने आके कह दिया तो हम कहते हैं अच्छा उन्हें मिल गया क्या, और सारी रात अपनी खराब कर देते हैं, सारा दिन सारा हफ्ता खराब कर देते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि मेरे बारे में लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, ये लोग का अपना ख्याल होता है, चाहे लोग आपके लिए बोलते भी ना हो, मगर ये आपकी मुश्किल नहीं है। अगर वो उल्टा आपके लिए बोल रहा है तो वो उस पैमाने से आपके लिए नाप रहा है। तो कलाम क्या कहता है, अगर वो आपके लिए उल्टा बोल रहा है तो उसके लिए आपसे डबल ट्रिपल उल्टा बोला जाएगा। लोगों का मुंह है वो तो बोलेंगे, साथों से कहें, लोगों का मुंह है वो तो बोलेंगे। आपकी मुश्किल ये है कि आप उनकी बातों पर ध्यान देते हैं, ये आपकी टेंशन है। अगर इस टेंशन को आप दूर कर देंगे ना कि लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, तो फिर आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी। अगर आपने ध्यान देना है, सोचें, अगर आपने ध्यान देना है तो लोगों की बातों पर नहीं ध्यान देना, खुदा के कलाम की बातों पर ध्यान देना है। हालेलुया। मैं योनाबाद में ना महीने बाद एक जगह पे मैसेज सुनाता हूँ। इस दफा जब मैंने मैसेज सुनाया, भाई कामना में उधर थे, तो एक बहन मेरे पास आई,
मुझे कहती भाई साहब बड़ा मजा आया ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸਲਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਟੌਪਿਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ लेकिन मैं भूल जानी है मैं क्या अच्छा चलो कोई बात नहीं मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आप ना भूलें मैंने दुआ की कि खुदा ने इस बहन को ज़हन अता कर इसको अपना फजल दे के तेरे कलाम की बातों को याद रखे समझे अगले महीने जो मैं गया ना तो नाल ओदी सस भी तो तुमने मेरे को दुआ कराना ही सस आंदी है तेरी दुआ करो मैंने बुलाती नहीं मैं क्या क्यों नहीं बुलाते मैं नहीं बुलाना मैं क्या क्यों 5 साल पहला मेरा भरा आया सी मिठाई लैके देने मेरे भरा दी वो कर देती थी ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ 5 साल पुरानी गल तो याद रखी है यानी कि हम ध्यान किन बातों पर दे रहे हैं और तकलीफ 5 साल से उठा रहे हैं एक दिन का भी कलाम याद नहीं रह रहा मगर 5 साल से पुरानी बात याद है और सास ने भी अच्छा उसके ज़हन में कहती घोटे गिट्टे रह गई पर जुबान नहीं है थक दी अगर वही जुबान हम खुदा के कलाम के लिए इस्तेमाल करें तो हमारी बरकत बढ़ जाती है हालेलुया डिप्रेशन का शिकार है आज लोग अभी मैं सर्वे रिपोर्ट देख रहा था 90% आज लोग डिप्रेशन का शिकार है डिप्रेशन का मतलब है नाउमीदी परेशानी प्रेशर ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं तनाव खिंचाव क्यों सोचते हो आप उसे बोलने दें आपकी क्या मुश्किल है फर्ज करें भाई कामरान मेरे खिलाफ बोल रहे हैं मुझे पता क्या करना चाहिए एक ठंडे पानी की बोतल उठानी चाहिए और इनको कहना चाहिए भाई जी पिए आप थक गए हैं पिए पी लो आप थक गए हैं जब वो थक जाएंगे फिर मैं कहूँगा चलो फिर बोलना तो बोल ले तो इससे वो चुप कर देंगे या बोलते भी रहेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उनकी बातों पर नहीं सुन रहा मुझे तो उनका मुंह हिलता नजर आता मैंने पानी पिला दिया अगर मैं देखूं मेरे खिलाफ ये बोला तो फिर उनके लिए मुश्किल नहीं होगी मुश्किल मेरे लिए होगी 5 साल पुरानी बातें हमें याद हैं हम रखे हुए हैं जेल में पर मगर कलाम भूल जाते हैं किसी को याद है पिछले हफ्ते का कलाम कईयों को याद है वेरी गुड आप खुदा का मकदस हैं 7 साल से कहें यू आर द टेंपल ऑफ गॉड आप कहें आप खुदा का मकदस हैं बोले आप खुदा का मकदस हैं एक दूसरे को कहें आप खुदा का घर है हालेलुया 7 साल से कहें जरा हटा के कहें कि आप खुदा का घर है अपने घर की सफाई कौन कौन करता है कि गांधी जी रहना पसंद है किस किस को गांधी में रहना पसंद है अच्छा किचन पसंद है ना किचन तो सबसे अच्छी जगह है वहां पे अगर 3-4 दिन के का कूड़ा रखा हो तरबूज के छिलके रखे हो खाना पुराना पड़ा हो होटल तो खाना आंदा है सालां दे छापर उथे छापर 4-5 दिन बाद तुसी अपने किचन च वड़ नहीं सकोगे कि वड़ोगे वो आएगी ना जब 4-5 दिन का कूड़ा आपको बर्दाश्त नहीं है तो खुदा के घर में 5-5 6-6 10-10 साल से गंद आपने अंदर रखा हुआ है चर्च आप चर्च हैं बोले आप चर्च हैं 7 साल से आप चर्च हैं तो जब हम उस घर में किचन में जाना पसंद नहीं करते जहां पे 4-5 दिन का कूड़ा पड़ा हो तो कैसे यीशु को समझते हैं कि वो आपके कूड़े वाले घर में आ जाएगा यीशु को मुझसे और आपसे ज्यादा सफाई पसंद है उसने तो इतना ज्यादा हमें साफ कर दिया सरफ या साबुन से नहीं अपने लहू से हमें साफ कर दिया 7 साल से कहे आप खुदा का घर है आपने से म्यूनिसिपल कारपोरेशन के कचरे का डब्बा बना दिया हुआ कूड़े वाला ड्रम देखा किसी ने देखा हाँ जी फर्क भी आया नहीं कौन चाहता है कि मैं सिर्फ कूड़े वाला ड्रम बनूं कोई चाहता है नहीं चाहता ना खुदा का घर कौन बनना चाहता है फिर कूड़े वाले ड्रम के अंदर जो मर्जी को फेंक जाता है पैम्पर फेंक गया पुराने सालन फेंक गया कूड़े वाला डब्बा क्या करता है यस
लिख दिया यस, तो आप क्यों भले गंद ले रहे हैं? आपके पास से कोई वहां बैठा हुआ है, यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का डब्बा नहीं बनना हमने, बोले हमने खुदा का घर बनना है। हालेलुया। और खुदा के घर के अंदर अगर कोई गंद पड़ा हुआ है पिछले 20 सालों से, 15 सालों से, 10 सालों से, पिछले हफ्ते से अगर कोई गंद पड़ा है, तो आज वक्त है उस गंद को बाहर फेंकना है और यीशु को वेलकम करना है। जो कुछ भी किसी तरह का भी डाल जाए ना, आप सब ले लेते हैं, वो नहीं हमने लेना। 10 साल पुराने मुद्दे रखे हुए हमने, 4-10 दिन का हम कूड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर 10 साल की हमारे खिलाफ जो बुराइयां किसने की थी वो हमें रखी हुई। फिर इशारे करते मेरे ना कुप्पी ने जनाजे थे, मेरी मासी ने मोड़ में मकानी थे, मेरी भैन की बर्थडे तेरे को आया, तो मैं तेरे ब्याह की किमें आऊं? आज तक हमने ये बातें संभाल के रखी हुई, और हम किसी के खिलाफ समझते हैं कि हमारे लिए वो बड़ा अच्छा सोच लेगा। आप किसी के खिलाफ ऐसी बातें जेल में रखेंगे, रिपीट करके, आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। मेरी किसी ने मदद नहीं की, कहीं ने सिर्फ कहीं ने जुमला रटा है, मेरे हालात बड़े खराब से, मेरी गहराई तक मदद ही नहीं की। स्टेटस देखने वाले होते हैं उन्होंने, मैं गरीब हूं, मेरी मदद ही नहीं कोई करता, मैं कल्ली हूं। फिर ऐसे ऐसे शेर थले कल्ले आना, सिर्फ कोई नहीं रहता, रब ही रहता है, और रहना तू ही रब ना रहने वाले बनो। सुबह सुबह स्टेटस बड़े खूबसूरत आ रहे होते हैं, स्टेटस आपके मूड को जाहिर कर देते हैं। मेरी भैन ने एक नेल पॉलिश लेना, ओदा स्टेटस लगा होता है, मेडोरा की नेल पॉलिश मैंने ली है। और ये खुदा ने आपको मोबाइल दिया, वेरी गुड, बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा मोबाइल है, लेकिन ये मोबाइल सिर्फ स्टेटस के लिए नहीं मिला। मोबाइल से खुदा का कलाम शेयर करें। लोग बर्बाद हो रहे हैं, इनको आपके स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आप अपना आप दिखा रहे हैं, तुसी के मोटरसाइकिल लिए कहने की फर्क पिया है, वेरी गुड, तुसी लिए खुदा का शुक्र अदा करो। आपने सूट ले लिया, सबसे पहले सूट स्टेटस पे, खाना हाथ के अंदर, लेकिन और क्या कहते हैं, और कफन क्या बना होता, शवारमा, वो खाते हुए मैं शवारमा खा रही, भाई खा रही है, कहने को फर्क पड़ा, पैसे दे देता है उन्हें, और मरी मुर्गियां का पेट तेरा खराब होना। आपको देखने से किसी को कुछ नहीं मिलना, साथ गए तेनू देखना कहने कुछ नहीं मिलना। तुसी भी कहो तो मैनू मुच्छा ना वध देना, कहने फर्क नहीं पैना। मैं वेखे ना ऐसे स्टेटस, सुबह सुबह मेरे रिश्तेदार ही मेरे दुश्मन। तो सुबह सुबह आप खुदा की बातों को शेयर करें, किसी को बरकत के अल्फाज दें। फिर ऐसी ऐसी गुफ्तगू स्टेटस पे नजर आती है, कुछ लोग जीने ही नहीं देते। क्यों ना गला सुनते हो? लोगों से मत मांगे। फिर अच्छा सारे स्टेटस आने तो बाद, सारी बुराइयां करने तो बाद ध्यान उतना नहीं जेब मान लेता है, 10,000 है तेरे, 12,000 है देना। तो लोगों से मत मांगिए, साथ में लोगों से मत मांगिए, नहीं उन्होंने बहला आके कहो लोगों से मत मांगिए। अगर लोगों से मांगेंगे ना तो आपको वापस करना पड़ेगा, और फिर वापसी भी कई सूद समेत लेते हैं, मुनाफा भी देना पड़ेगा। अच्छा मुनाफा भी लेगा तो को फिर 10 बंदे दसेगा आई सी मेरे को पैसे मंगवा, कहोगे ना तुझे दस्यो ना किसी ने, नहीं बेफिक्र रहो, लो तुसी हर महीने में 10,000 मगर 1000 देना है, ठीक है भाई, 1000 काट के 9 दे देता है, 10 बंदे आया सी मेरे को पैसे मंगन, इन्हां दा ते घर ही नहीं चलता। अगर खुदा से मांगेंगे तो खुदा को वापस नहीं करना पड़ेगा। बोले हालेलुया। खुदा मुनाफा लेता नहीं है,
बल्कि खुदा से मांगो, मुनाफे से देता है। हालेलुया। और फिर वो देकर बदनाम नहीं करता, देकर आपको कुएं से उठाकर तख्तों में बिठाने की कुदरत है। सबके स्टेटस चेंज करें आज से। आप किसी को अपनी गरीबी दिखाएंगे, किसी को अपना मुंह दिखाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को खुशी दिखाएं, किसी को दिखाएं कि मैनू तुहाडियां गल्लां नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, मैं यीशु दे विच। हालेलुया। डॉलर की डीपी लाई नजर लग गई। आपका स्टेटस आपके मूड की कंडीशन को जाहिर कर जाता है। पता चल जाता है आप कितने रूहानी हैं। नाल दिन को बड़े बनो, भला आगे को कौन बड़े बनाओ, होशियार बने, साथ से क्या होशियार बने। खुदा ने आपको फोन दिया और आप फोन ही के जरिए लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाएं। लोग बर्बाद हो रहे हैं। आपको देखकर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लोग एक बार आजकल के लोग बड़े बड़े एक्टर ने इंज बंदे ने अंगूठा थक जाता, स्पीड नहीं थकती, कोई फर्क नहीं पड़ता। कलाम दे, हालात बदल जाएंगे। खुदा के कलाम फैलाएं, हालात बदल जाएंगे। और हालात सिर्फ उनके नहीं बदलेंगे, कलाम फैलाने वालों के हालात सबसे पहले बदलते हैं। आपकी परेशानी नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। नाल दिन फर्क हो, तो परेशानी नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं। हम दूसरों की बातें सोच सोच कर सारी सारी रात नहीं सोते। पता नहीं उन्हें मेरे बारे में क्या हुआ। जरा कैमरे पे आप देना मेरी तरफ से ठीक है, सही सही दसो। सैनता तो मेरे वाली सी, मेरे बारे की क्या है? ये भी रहे ये भी होनी चाहिए। मैं नहीं हूं दसांगा। कई ते मेरिया भैनों के कान एडे तेज ने, नाल दे घर च लाई होती रहेगी बच्चे खुदा दी आवाज कलाम दी पादरी उच्ची उच्ची बोलता होएगा। भैन कहेगी मैनूं सुनाई नहीं, बस समझ नहीं आई। आवाज जो भैन अपने बंदे नूं लगदी होगी, बंदे नूं आवाज नहीं आएगी, और नाल दे घरों एक भैन उन्होंने बिल्डिंग के थले लड़ाई होती सी, वो कई गिरे लगी, नजर नहीं आ रहे। छोटे भरा ने बुलाया उन्होंने कहती बैग थले की हो रहा है, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੌਣ ਉਹ ਐਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਦੀ ਧੌਣ ਫਸਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ मार ये हो जो के। पर ऐसे ही हम अपना टाइम गुजार देते हैं। फिर किसी को बुला के किसी ने अगर कह दिया सही सी दसो काम में मेरे बारे की कह रहे हैं, उन्हें कहते हैं कह रहे हैं चोर है, कर लो की कर लो चोर। हूँ सारी रात देखते कर जाएंगे मैं चोर मैं की चुराया मैं इल्जाम लाते, फिर स्टेटस लगेंगे। लोग तो ईमानदारों को भी चोर बना देते हैं। यानी तेरे को नहीं दस रहे तेरे बारे कुछ किया तो चुप कर जा। जो कह भी देता किसी ने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको उसकी जात का सर्फ जाहिर होगा जिसने आपके बारे में बात की। आप उससे भलाई करें, और जब कोई पूछे कोई आके कहे उन्हें तेरे बारे है क्या तू ऐसी कीता है, सिंपल कहना वो उसका ज़र्फ था, मेरे अंदर यीशु है, ये उसका ज़र्फ है। अगर आप कुछ खुश रहना चाहते हैं, कौन खुश रहना चाहते हैं, तो फिर इन बातों को नजरअंदाज करना सीखें।
हालेलुया। फिर इन बातों पर गौर ना करें। नाल दे घाट ढोलकी बजदी होगी ना गीतां दी, हाय हाय स्यापा, इन्हां दा काम ही कोई नहीं। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਤੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀ ਖਾ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ। मुकद्दस दाऊद जब जूलियत से लड़ने गया था ना, तो सारा इस्राएल जूलियत से डरता था, सारा। अकेला दाऊद नहीं डरता। जब वो जाने लगा तो जूलियत कह रहा है, जाती जूलियत कह रहा है, मैं तुझे ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। दाऊद उसकी बातों पर गौर नहीं कर रहा। दाऊद के ज़हन में एक ही बात थी कि मैं यीशु के नाम से आ रहा हूं और मैं तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। हालेलुया। पूरी फौज डर रही थी, साउल डर रहा था। साउल कहता है वो बड़ा ताकतवर, मेरा यूनिफॉर्म पा जा, जबरदस्ती पवाता। दाऊद को नहीं जा रहा यूनिफॉर्म पा के। दाऊद ने लाता यूनिफॉर्म, कहना मेरे नाम ले लेंगे भाई का। उसका भाई अभी नवाश उसको कहता ना जा, तेरे तेनों मार देगा। उसने अभी नवाश की बात नहीं सुनी। जब मुकद्दस दाऊद जूलियत से लड़ने जा रहा था तो उसके भाई अभी नवाश ने उससे बहुत बातें की, लड़ाई की, मगर दाऊद ने उसकी बातों को इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। दाऊद ने उसे कुछ नहीं जानता था कि मेरी लड़ाई मेरे भाई से नहीं है। दाऊद इसलिए भाई की बातें नहीं सुन रहा था कि दाऊद को पता था कि मेरी लड़ाई मेरे भाई से नहीं है, मेरी लड़ाई जाती जूलियत से है। अगर आपके घर में आपके खिलाफ कोई बातें कर रहा है, आपके रिश्तेदारों में आपके खिलाफ कोई बातें कर रहा है, तो आप उसकी बातों पर तवज्जो न दें, क्योंकि आपकी लड़ाई उससे नहीं है, आपकी लड़ाई अपनी से है जो उसको बदला रहा है। अब्लीस तो चाहता है कि आपकी रफाकत तोड़े, अब्लीस चाहता है आपकी जिंदगी बर्बाद हो, अब्लीस चाहता है आपके कान खराब हो जाए, उनमें कलाम की आवाज ना जाए, सिर्फ ऐसी बातों की आवाज जाए। अब्लीस आपको खुश नहीं रहने देना चाहता, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक ही घर में रहकर कुछ लोग आपस में नहीं बोलते, एक ही रिश्ते में रहकर, एक ही रिश्तेदारी में रहकर कुछ लोग आपस में नहीं बोलते। अच्छा, जो उसके सामने आएंगे बड़े मेरी बाजी है, मेरा भरा है, ये दोगले फेसेस खुदा को पसंद नहीं है। एक चर्च में आकर एक दूसरे को पसंद नहीं करते कुछ लोग। एक चर्च में आकर तालियां बजाते होंगे, बड़े आदर साहब मांगे मारो, खुशियां करो, खुदा दिखा रहे हो। कभी देखा ओवरलोडेड शिप को? लोडेड फ्राइज में ओवरलोडेड शिप, वेरी चार। क्या आप जानते हैं कि ओवरलोडेड शिप जब डूब जाते हैं वजन से, उनको बचाने के लिए क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा सामान को फेंक दिया जाता है। आपने अपने आप को ओवरलोडेड किया हुआ है। आपके चाचू ने आपके खिलाफ क्या बातें की, आपके कजन्स आपके खिलाफ क्या बातें करते हैं, आपकी बहनों ने आपके खिलाफ क्या बातें की, छोड़ दें, ओवरलोडेड है, आप डूब जाएंगे। आप ये ओवरलोडेड सामान को बाहर फेंक दें। आजकल बहरे लोग बहुत खुश हैं। बहरे पता है बहरे कौन होते हैं? बोले कौन होते हैं बहरे? जिन्हें सुनाई नहीं देता, बड़े खुश हैं। 4 बहरे खलोते हैं सन, डिसाइड हो गया कि पहाड़ चढ़ के आना है, सारे तैयार हो गए। 3 बहरे तैयार सन, एक और आ गया, एक देना चाहो उत्ते गिद्दड़ जे, उत्ते ये जे, उत्ते वो जे, सारे आपस में लड़न लगे। एक ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ तो हो के भी आ गया, और ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਹਿਰਾ ਹੀ, ਉਹ ਬਹਿਰਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ वाले हैं एक दूसरे की सुन के ਉੱਥੇ ही खलोते रहे। आज हमने किसी की नहीं सुननी। अगर आपने पढ़ना है तो खुदा की आवाज सुनो। ओवरलोडेड शिप जो होते हैं उनमें एक्स्ट्रा सामान आपको बाहर फेंकना है। साथ वाल से कहे मसीही बनो, जसूस ना बनो। आपके कहो मसीही बन, जसूस ना बन। आज हम मसीही कम बनते हैं, जसूस ज्यादा।
स्पेशल बच्चों 20 रुपए दे के भेजना, जा पता करके आंटी के घर की पक्का है, जाओ आज की करन डे ने मसीह बने। कभी कभी लोग आपके साथ मिलकर किसी और की जासूसी करते हैं। खुदा का बंदा बने, जासूस या चमचे ना बने। साथ साथ के चमचे भी ना बनो। ऐसे हम लोगों के पीछे लग जाते हैं। पता बाजी तेरे बारे में की आंधी है, अच्छा जा पता करके आ। उसको शटअप कॉल दे, उसको क्या मेरा खुदा मुझे खुद बता देगा। खुदा ने हमें शागिर्द होने के लिए बुलाया, ना कि चमचे होने के लिए। कौन कौन कहता है मैं बड़ा अच्छा चमचा हूं? नहीं, हमने अच्छा चमचा नहीं बनना, अच्छा शागिर्द बनना है। बोले अच्छा शागिर्द बनना। जैसे मैंने बताया कुछ बहनों के कान बड़े तेज होते हैं। एक सवाल है आपसे, आप दूसरों की जिंदगी में झांकते हैं, आपको क्या मिलेगा? पूछे जरा एक दूसरे को, तुम की मिल रहा है? पूछो ना, को पूछो की मिल रहा है, पूछ लो। वो भैन आंदी मैं किवें पूछा, मैं आदे आप ही कर दूंगी। पूछो नाल दे दी जिंदगी च चंग करना की लगता है? अपनी जिंदगी के बारे में सोचते नहीं हम कि वो कहाँ कब खत्म हो जाएगी। दूसरों की जिंदगी के बारे में हर वक्त सोचने का हमें ठेका लिया हुआ। आज से दूसरों की जिंदगी के बारे में नहीं सोचना, बोले हमने अपनी जिंदगी के बारे में सोचना। हालेलुया, बोले हालेलुया। हमें करना क्या है दूसरों के बारे में जानकर? पूछे जरा एक दूसरे, पूछे जरा फिर वे पूछो की करना तुझे। हमें करना क्या है दूसरों के बारे में जानकर? हमें खुदा के कलाम की बातों को जानने की जरूरत है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सारे भैन भरा भी एक दूसरे के खिलाफ आलन दे जरा प्यो नु, अबू नु आलन दे, दस नहीं है मैं तेरे सारे काम, भाई तू अपने काम सीधे कर दे। अबू नु खुद सब सारे बच्चों के बारे पता होता है। हमने खुदा के फजल से निजात पाई है। हालेलुया। हमने अपने कामों से नहीं बल्कि खुदा के फजल से हमने निजात पाई है। और निजात इब्लीस को पता है कि वो आपसे आपकी निजात नहीं छीन सकता। साथ साथ क्या आपकी निजात कोई नहीं छीन सकता। सिर्फ और सिर्फ इब्लीस आपका वक्त बर्बाद कर सकता है कि उस वक्त में आप खुदा के कलाम की बातें ना सुने। पता है आपको कि कौन सा वक्त खुदा ने आपके लिए बेहतरीन रखा हुआ है? पता है? नहीं पता। एक दिन यीशु जा रहे थे एक भीड़ में, तो 12 वर्ष से एक बीमार औरत थी। पता है ना उसके बारे में? पता नहीं 12 साल तो किन्नियां को ने दुआएं कराई, किन्ने की मां को दवाइयां ली, लेकिन उस दिन उसका वक्त था। जिस दिन यीशु के पास आ रही थी, बड़े लोगों ने बातें की, एक यहूदी नु टच करेगी देखिए ना की हुंदा, यहूदी नु भी कीड़े पै जाने ने, उन्होंने भी इंज हो जाना। कईयां ने अगर हमारे जैसी होती वो उस दिन खुदा के घर में चर्च ना आती, वो चर्च था, चर्च ही ना आती। हम क्या करते हैं? पादरी नाराज हो गिरजा छाड़ता, बुआ नाराज हो गिरजा छाड़ता, एल्डर साहब नाराज हो गिरजा छाड़ता। जिस दिन आप गिरजा छोड़ देते हैं उसी दिन आपका वक्त होता है। 12 वर्ष से बीमार औरत जो थी उसका उस दिन वक्त था। गिरती पड़ती ऐसे जा रही, माल दौलत भी नहीं था उसके पास, जा रही थी, एकदम से यीशु की पोशाक उसने बगैर खौफ से छू ली। यीशु ने कहा किसने मुझे छुआ? गिरद कहते यीशु पब्लिक तेरे तो डिगन नहीं है, तू कहना किसने छुआ? कहता नहीं, किसी ने उससे मानना छुआ जो सारी पब्लिक छुई। मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। जिस दिन आप इस ईमान से खुदा के घर में आएंगे, यीशु की कुव्वत आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। हालांकि यीशु उस औरत के लिए नहीं आए थे, यीशु वहां किसी और के लिए जा रहे थे। किसके लिए जा रहे थे? यायर के घर जा रहे थे। पता है आपको? यायर ने बुलाया था, मेरी बेटी बीमार है। वहां यीशु ने जब उसको शिफा दी, यीशु चलने लगे यायर घर। यायर आ गया, यीशु मेरे घर आए, प्लीज मेरे घर आए, मेरी बेटी बीमार है। एक सामने वो बंदा भजा आया, वो भी वक्त खराब करना आ गया। वो भी अंदर रहने दे, उस्ताद को तकलीफ ना दे, तेरी बेटी मर गई है। यीशु ने ये बात सुनी, लेकिन यीशु ने उसकी बात पर ध्यान नहीं लगाया। इतना सुनी इतना कर देती, क्योंकि यीशु मौत को नहीं मानते थे। पता है आपको? यीशु कभी किसी जनाजे पे नहीं गए थे। पता है आपको? तो जेड़े जनाजे जाना ना, जनाजे खराब कर देते। लाजर के जनाजे थे गए, लाजर का जनाजा खराब कर रहा है।
इज़राइल की बेटी से घर गए लोग रोन धोन डे ने यसू उन्होंने भी रोन धोन खराब कर रहे। एक दिन एक मुर्दा सामने आ रहा सी और यसू के सामने ना जान लगे यसू के थलेगा यसू ने ओदी मंजी नु छुया मुर्दा उठ खलोता उन्होंने भी जनाजे का बेड़ा गर्क हो गया। सारे ने जनाजे का बेड़ा गर्क करते करते अपने भी जनाजा करता लोग दफना के बाहर आए यसू जिंदा होके बाहर आ गए। हालेलुया। यसू पता क्यों नहीं हम जनाजे में जाते ये नहीं कि तुसी भी ना जाओ तुसी जाओ को पादरी ने मना कर दिया नहीं यसू इसलिए जनाजे में नहीं जाते क्योंकि यसू ने मौत को बनाया नहीं मौत तो साढ़े गुनाहों की वजह तो आई है खुदा ने मौत को नहीं बनाया गुनाह की मजदूरी क्या है और आज इस गुनाहों से हमने बाहर निकलना है किसी की बातों पर कान नहीं रखने यीशु की पावर को अपने अंदर लेकर आना यीशु की हजूरी को लेकर आना हालेलुया। और यीशु ने भी उस बंदे की बात पर गौर नहीं किया हम बचाए गए हैं शैतान जानता है कि वो हमारी निजात नहीं छीन सकता वो हमारा वक्त छीनना चाहता है। हो सकता है आप में से किसी का वक्त आज बहुत अच्छा है और अब पुलिस ने उसके अंदर गुस्सा डाल दिया है और आज वो यहाँ नहीं आया उसका काम जो आज 20 साल बाद होना था वो आज घर बैठा हुआ। पता है आपको सूखे हाथ के एक मैंने मैसेज सुनाया था 25 साल से वो हैंकल के बाहर खड़ा होता था रोज ऐसे आके पट्टी बांध के लेकिन उसका वक्त नहीं था। लोग उसको कहते थे कि ये यहाँ जलील होने के लिए खड़ा हो लोग उसको डांटते थे लाम डाम करते थे लेकिन वो फिर भी आ जाता था। एक दिन उसका वक्त था यीशु आए यीशु ने अंदर बुलाया यीशु ने कहा अपना हाथ बढ़ा उसने जैसे ही सूखा हुआ हाथ बढ़ाया वो सूखा नहीं रहा बल्कि वो हाथ तंदुरुस्त हो गया क्योंकि उस दिन उसका वक्त था। इसलिए किसी के कहने से चर्च मत छोड़े सांसद के चर्च नहीं छोड़ना मैं आवा तू जरूर आना चर्च नहीं मैं भी आवा तू नहीं आ बड़े मजा के मैं भावे आवा ना कैसे सब मिलकर आएंगे हालेलुया। शैतान आपके सामने देखे पतरस से खुदा कितना प्यार करते थे पता है आपको कि नहीं फिर जी सारी बोलो करते हैं कि नहीं खास शागिर्द है लेकिन एक दिन उदे गल भी पुलिस ने पाता यीशु ने क्या यीशु को वो बातें मरगड़ाने लगा यीशु ने ठीक है पतरस ना कर मेरे भरा पतरस नहीं तू मेरा बड़ा अच्छा भरा है ना कर यीशु ने कहा शैतान दूर हो क्या कहा क्योंकि उस वक्त वो वक्त खराब करने के लिए पतरस के अंदर आया हुआ था। तो यीशु ने डांटा अब इसको हमें डांटना है लोगों के दरमियान चुगलियां करा के हम किसी के बारे में सोचते हैं कि वो हमारा वक्त जाया कर रहा है। आप किसी की चुगलियों पर कान ना धरें बल्कि इधर से सुने और इधर से और कान कहां धरने हैं कहां पे खुदा के कलाम पर यहां से आपके लिए जिंदगी है यहां से आपके लिए बरकत है। हम दूसरों की बातों को सुनकर अपना वक्त खराब कर देते हैं हमें नहीं पता होता कि कौन सा वक्त हमारे लिए खास है। अब 3 से 4 बजे जो चर्च में एक्टिविटी शुरू हुई है बड़ा खास वक्त है। ज़बूर 5 उसकी 30 आयत में लिखा है कि मैं सुबह को दुआ करके इंतजार करूंगा खुदा मेरी दुआ सुनेगा और मुझे उसका बदला देगा। लेकिन हम क्या करते हैं हम कहते हैं नहीं मैं नहीं फलाना नहीं आज बाजी ने मुझे दुआ का मौका दिया कल तो बस ग्रुप जी नहीं होना ऐसा नहीं करना। हमने किसी बाजी के लिए किसी पादरी के लिए किसी शख्स के लिए इसमें शामिल नहीं होना हमने यीशु के लिए शामिल बोले हालेलुया हालेलुया। तो आज से हमने किसी की बातों पर नहीं सोचना। अगर हम सोचेंगे तो किसका वक्त बर्बाद होगा और अगर हम किसी के लिए ऐसा करेंगे तो फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। बोले मुझे फर्क पड़ना है बोले मुझे फर्क पड़ना है क्योंकि मेरी जुबान गंदी होगी मेरा किरदार गंदा होगा वो कचरे का डब्बा नहीं बनेगा मैं कचरे का डब्बा बन जाऊंगा। आज से मैंने और उसको लिए तो मैंने एक शापर फेंका था ना मेरे लिए पूरा ड्रम वापस आ जाएगा क्योंकि कलाम कहता है वो मुझे ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए आज से किसी के लिए भलाई ही करें ताकि भलाई मल्टीप्लाई होकर आपके पास आए। खुदा आज के कलाम के सिरे से आपको बहुत